दिल वाले लोग तो नहीं है, कहाँ है? ये तो बैठा हुआ है। हम लोग तो झारखंड ही वाले थे। तोड़ने वाला भी नहीं है। तोड़ना हम लोग तोड़ने वाले नहीं है, हमारा तोड़ के लोग जाता है। अच्छा, अभी तो हम लोग का न तोड़ना है न मिलना है। हम लोग आइडेंटिटी का बात किया है, हाँ, और आइडेंटिटी में पावर है। पूरे इंडिया का आदिवासी एक साथ हो जाएगा तब क्या करेगा? 10 states and the brothers and sisters. No chance. पहले से है ना, Kerala people are not here. उन लोग का ट्रांसलेशन में डिले हो रहा था, इसीलिए उन लोग बोला हमको समझ में नहीं आ रहा। They have automatic translation in their कान। Yeah. पता है आप लोग? Yeah. बेकार का उन लोग को बोला कि मछली तुम लोग नहीं जानते। I felt bad. Anyway, तो हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से बोलता है कि हमको माफी मांगना है। नागालैंड वाली कहाँ चली गई? हाँ, वो देखा। But I would like to tell you that when I started this kind of work against the wishes of my family and my friends and my society, and when I went to Kohima, I was gifted two spears and one t-shirt, not t-shirt. Waistcoat. Waistcoat. Yes, woolen Yes, waistcoat. handmade. Beautiful design. And so what happened once, there was one meeting of all the tribes in 1985 in our Jharkhand. So young man I was that time, not like now. So I had to show off. So I wore that and went, and everybody thought कि कहीं मेरा गर्दन नहीं काट। He has special friends. Everybody was very respectful to me. But both the bhala, I call it, spear, is in my office, Okay. in my lawyer office. Good हाँ, to know उतना that. बड़ा नहीं है, छोटा है। वो एयरक्राफ्ट वाला लोग हमको ले जाने दिया। So then the people who came to see me off, they brought small one, and they told the pilot to keep it with him and give it to me when I land in Ranchi. So it was done like that. आप लोग से बहुत डरता है सब, Oh, it's a great डरा story. के रखना, Thank you so much. तभी इन लोग यूनाइट होगा। I thank you very much. Okay, say और अभी again. तो आपका पार्टनर लोग उधर भी आ रहा है ना। हाँ, छोड़ना मत किसी को। Identity is very important. And identity doesn't mean that my name is Rashmi Katyan. It is not that identity. I am so and so tribe. No. I am a tribe, one of the tribes of India. That is our identity. And our religion may be different, some of them, like Ladakh, Buddhist, Islam, like Jharkhand, Christian, non-Christian, like many other places. आप लोग समझ गए हैं. But the present day, in that plan to make the Adivasi into an Antvasi, that is the plan going on. In that plan, they are taking your territory. That is land acquisition. बड़ा डैम बनाना है तो ट्राइबल लैंड में बनाओ, बिग फैक्ट्री बनाना है तो ट्राइबल लैंड में बनाओ, और तुमको पैसा दे देगा, तुम चले जाना, कोई बात नहीं। अरे पैसा तो लेगा तो खा जाएगा तो खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा फिर तो लेबरर बन जाएगा ना। लैंड कंट्रोल हट जाएगा तो सोशल स्ट्रक्चर टूट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सब ट्राइब लोग इधर से उधर हो जाएंगे। जैसे द सेम वे as the Gond tribe person from Bihar. Oh, he's here. They lost their identity. They have land, Points. but they don't want to tell people that they are Adivasi. From backside also. Oh, खराब बात। Because if he says Adivasi in large Hindu society, then actually he comes in the lowest of the ladder. So he wants to be higher.
So he says, I am not Adivasi. But then this fellow, your colleague of the TLP batch, he understands this. And not because he's from TLP. He understands it without being in TLP. You must understand that. इसका मतलब ये है कि you have to do it yourself from within. If somebody tells you to do, then you are as good as an extremist going with a gun and you only know how to use it. Nothing in your head. This is the best gun. As I said, knowledge is power. Power to the people, knowledge to the people. I will give you my own story. आप लोग तो बहुत स्टोरी सुना है नहीं? During the Koilkaro Dam project, I was the lawyer for that 124 villages. Very powerful job I had. 124 villages. Okay? So what happened? I have to talk about land acquisition all the time. I can't go and say, don't let the dam come. That is not my job. It is the Gudiya Padha, the headman of that Gudiya sub-tribe. It is his job. I cannot say. And in our profession, or even in social work, never give advice if it is not asked. You may be very knowledgeable. Keep your mouth shut. Give advice only when asked. पूछेगा तभी बताने का. नहीं पूछेगा तो क्यों बताएगा? Why? Same thing. You have to take the initiative. उंगली पकड़ के लीडर नहीं बनाता. उंगली पकड़ के लीड भी नहीं कर सकता. बिकॉज बीच बीच में बच्चा लोग को देखा नेवी सिंह चिल्ड्रन थोड़ा दूर तो जाएगा फिर छोड़ के भाग जाएगा. So when child you cannot lead by hand, how can you lead big people by hand? It has to come from the heart and the mind. Okay. So he did it from the heart and the mind. And he found out, and I found out myself. I knew because Makil Sahab is looking at all the document, knowing which state has what tribe, etc., etc. Like when I was studying, I suddenly found Bhil. So I knew, because Bhils were big Raja, na? But Bhil Lalla kya aa gaya? I got confused. This is when I was 22, 23 years old. Bhil to samjha. ये भील लल्ला कैसे आ गया? इसको लल्ला क्यों कर दिया? These questions in my mind. Then I find out कि क्या हुआ. वही हुआ. वो अपना कल्चर छोड़ा बाद में रियलाइज किया तो भील लोग उसको किक आउट कर दिया. दादा तुम क्या कर रहा है? तो फिर जब पॉलिटिक्स हुआ तो फिर उसका भी नाम जोड़ दिया. अभी उरांव लोग हैं हमारा स्टेट में. वो लोग बगल में ब्रैकेट इन ब्रैकेट दे हैव रिटन धांगर. उत्तर प्रदेश धांगर इज बैकवर्ड क्लास. अब बताओ. असम में सेम प्रॉब्लम. सम पीपल यहाँ का एग्जाम्पल देगा ना. योर एग्जाम्पल इन असम तो योर बैकवर्ड क्लास. तमाम लोग बगल में बॉर्डर में शेड्यूल ट्राइब और उसको वहां पे क्यों बना दिया? सेम पर्सन ना. इफ यू डू एंथ्रोपोलॉजी, क्या करता है एंथ्रोपोलॉजी? उसका नाक इतना चौड़ा है तो मुंडा, उसका इतना पतला है तो राव, नहीं ना? इतना लंबा है तो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट. अरे सबके पास नाक है, क्या फर्क पड़ता है? They won't have nose, they will die. But anyway, वो एंथ्रोपोलॉजी है ना. तो उस एंथ्रोपोलॉजी में this person is scheduled tribe and maybe because he is Tamang, he might
might go and marry another Tamang in Assam. Possible. But what will happen to his children? Suppose they have a fight and she says, my children in Assam. They will say, no, I will stay with Papa because I'll get more facility over there. Mummy will say, no, you stay with me. Oh, देखो चक्कर हो गया. But anthropology में नापेगा तो same nose रहेगा ना दोनों का. तो this is like breakdown of because they are not controlling our territory. अब इसको धांगड़ बनाया ना उराव लोग को. Bihar also they are called धांगड़, right? अभी धांगड़ एकदम पूरा झारखंडी culture में यदि if I use that word धांगड़, धांगड़ will become apprentice. And in many places they are known as servant. But basically apprentice. Because in Ural culture, tribe culture, if the family only has daughters, what will happen? To look after in old age. So they have options. One, in Hindi? Oh Baba, last time they said, वो मेरा केरला वाला लोग गुस्सा हो जाएगा. Sir, here also translator medium is. Translation is working. Your translation, no. अभिंदर कुछ व्यवस्था हो सकता है? No. थोड़ा तो Okay, I will be. व्यवस्था करो. Then क्या करें? फैसिलिटी है ना जनता है Because of you, I am speaking. बोलों का काम है Sir, I will translate. I am sorry. Majority wins. But not majoritarianism. That I don't. Sir, I will Because I am translate. majority. I can't push you out. I have to worry about my little finger. Okay, तब हिंदी में ही बोलेगा. तो क्या बोलना चाहिए? धांगर है ना, तो धांगर को नौकर भी बोलते हैं और धांगर को ज्यादातर कम लोग नौकर बोलते हैं. मतलब वो जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटा होगा या कोई जमींदारी परिवार का होगा तो धांगर को नौकर जैसा ट्रीट करेगा. लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ, लाइफ एक्सपीरियंस स्टेट में देखा, लड़के देखा, तो आई रियलाइज कि इन दी उरांव सोसाइटी दे आर एक्चुअली अप्रेंटिस. अप्रेंटिस का क्या मतलब? ट्रेनी. तो ट्रेनी को क्या, अब डॉटर्स हैं, हमारा खेती को कौन देखभाल करेगा? हम बुढ़ा हो जाएगा तो हमको कौन देखभाल करेगा? तो 2 ऑप्शंस है. एक, हम घर दामाद बना के लाएगा. एक बेटी को, उसको हम, उसका जो हस्बैंड है उसको हम घर दामाद बनाएंगे. तो उसमें उनका ट्रेडिशन है, यदि घर दामाद बनाने का होगा तो विलेज हेडमैन विल मीटिंग होगा. मीटिंग में डिसाइड होगा कि इस डॉटर का हम घर दामाद करेगा. तो यदि डिसाइड होगा तब पूरा विलेज जाएगा लड़का के घर. वहाँ बोलेगा तुम घर दामाद बनेगा, तो बोलेगा हाँ बनेगा. उसका फैमिली डिसाइड करेगा. फिर दोनों आदमी का विलेज में उन लोग का अपना अपना विलेज फीस्ट होगा. ठीक. अब लीगल पोजीशन क्या है? 1, गर्ल को जाना पड़ेगा बाराती लेके और लड़का को आना पड़ेगा सराती लेके. उल्टा हो जाएगा. देखो कितना अच्छा ट्रेडिशन है. ठीक है, उल्टा हो जाए. और गर्ल लीगल पोजीशन क्या है? शादी होने के बाद लड़का तो फिर रहेगा घर में, लड़की के घर में. मिनिमम 7 इयर्स उसको फादर इन लॉ का घर में रहना पड़ेगा. उसके बाद कहाँ जाना जा सकता है, लेकिन 7 इयर्स रहना पड़ेगा. लीगल रिक्वायरमेंट, नॉट लीगल but customary law requirement, but it is not written anywhere. So it might change from village, बदलेगा ना. but ज्यादातर गांव में 7 इयर्स है. ठीक, ज्यादातर.
किसी में हो सकता है 10 होगा 5 होगा, दैट विल डिपेंड विद देयर इज अ फाइट बिटवीन हस्बैंड वाइफ। तो 7 इयर्स अभी क्या होगा, उसका जो प्रोजिनी होगा, उसका जो बाल बच्चा होगा, वो बाल बच्चा लड़की का पूरा जो प्रॉपर्टी होगा उसमें उसको पूरा अधिकार होगा, लेकिन लड़का को अधिकार नहीं है। ये मेरा ऑफिस चालू हो गया ना, और लोग चालू हो गया क्या करेगा, और जूनियर लोग अभी उन लोग को हवाई जहाज में डाल दिया, नहीं समझ गया होगा कि सच में कहीं बात नहीं है। क्या कि सुबह से 3 बार बेचारा ट्राई किया, एवरी टाइम हवाई जहाज में आगे खोला तो झटसे बंद किया। एनीवे कोर्ट इज रनिंग ना, तो उसका जो बाल बच्चा होगा ना, वो बाल बच्चा वो लड़की का पूरा अधिकार, माने वो लड़का हो गया ना अभी, तो लड़का का जैसा होगा वैसा होगा। और ये जो लड़का है ना, उसको अपना घर का पूरा राइट्स को छोड़ देना पड़ेगा, माने उसका जो भाई लोग हैं उन लोग इसको हिस्सा नहीं देगा। जैसे लड़की का शादी होने से लड़की को हिस्सा नहीं देता है, वो उसको सेम प्रॉब्लम उसका होने का है। ठीक, तो धांगर अप्रेंटिस हमको कैसे पता चला, हम बहुत सारा में देखा ना कि वो जो धांगर है वो उसका कोई रिश्तेदार के यहाँ से किसी लड़का को लेके आया है, वो छोटा था और वो सेवा करते करते बड़ा हो गया, तो अपना बेटी से उसको शादी भी करा दिया। तब एक तो केस में हम बोला कि कैसे हो सकता है, ये तुम बोलता है इसका नौकर से शादी कराया, नहीं कराया, उसको हम उसका जीनियोलॉजी ट्रेस करके कोर्ट में बताया कि तो इसका रिलेटिव का बेटा है, एडॉप्शन हुआ है। एडॉप्ट करता है ना रिलेटिव का बच्चा को, मतलब एडॉप्ट किया इसको, नौकर थोड़ी है। जीत गया, समझा बात? ठीक है, तो इन नॉलेज के कारण वो पावरफुल बना दिया ना उसको। हम अभी देखो क्या कर दिया पॉलिटिशियन लोग, वो उराव के बगल में एक तो ब्रैकेट में लिखा धांगर, तो उसका देखो सोशल तोड़ने का तरीका शुरू हो गया। अभी बिहार वाली कहाँ गई धांगर, इधर 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 उराव फ्रॉम बिहार, उड़ाओ नहीं, उराव इधर है, इधर है। और देखो उराव फ्रॉम पूर्णिया, तो और वो धांगर में अभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उराव में नहीं, कौन याद रखते हैं, और उराव में उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अभी उसका उराव का जो वैल्यू है झारखंड में नहीं, इंडिया में उराव का बहुत वैल्यू है। नेपाल में भी बहुत उराव लोग हैं, याद रखना, वो वैल्यू घट जाएगा उसका, क्योंकि वो धांगर हो जाएगा ना। ओडिशा में भी समझ गया? तो धीरे धीरे जो बिहार सोसाइटी है वो तो उसको नौकर जैसा सोचा, धांगर है तुम धांगर उराव, लेकिन यदि बोले कि उराव है तो दूसरा बात है ना। अभी झारखंड में आएगा तो उन लोग उराव में नहीं बोलता, उन लोग बोलता हम लोग कुड़ुक है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल नाम उसका कुड़ुक है। तो वो अपना जैसे हिंदू समाज बोल रहा है ना कि हमारा गोल्डन एरा खत्म हो गया तो उसको हम एस्टेब्लिश करेगा, कर रहा है ना, उसी तरह उन लोग भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी में याद रखना, इसको तोड़ने का नहीं है, इसको मजबूत करने का है। हिसाब से बिहार वाले लोग को झगड़ा करना चाहिए। धांगर कहाँ से आया जी? उसको तो उत्तर प्रदेश में तुम बैकवर्ड क्लास में रखा है। हाँ, सब जगह है। अब एक एग्जाम्पल दिए, आप लोग आपस में बात कीजिए, एक एग्जाम्पल उनका दिए और एक उधर दिए, सबके बारे में नहीं बता सकते टाइम। ठीक है, तो जो प्रॉमिस किए वो काम करेंगे। ठीक है, हम लोग के मन में ऑलवेज आता है फिफ्थ शेड्यूल, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ये ऑलवेज बात होते हैं। संविधान 241, लेकिन 371 कोई नहीं बात करता। 371 का बात नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं करता है, करता है 371। और 371 आर्टिकल पढ़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबसे पहले इन लोग के बारे में लिखा हुआ है, नागालैंड। और ये नहीं पढ़ता है
तो कैसे लीडरशिप करेगा? इसीलिए हम बोला कि गर्दन काट देगा मेरा। लेकिन काटने नहीं सकेगा, हमको हेमा से इनर लाइन परमिट में अंदर घुस जाएगा। I am one of those rare mad people who will go right up, and I can even take the strongest chili that you can eat. I have eaten, and हमको कोई पानी नहीं गिरा सकता। Maybe you did them on winter weekend, on winter time. That is why I got the chair ना, I ate it. ये लोग का मिर्चा खाया आप लोग? मैंने खाया। दिमाग खराब हो गया। नागा मिर्चा मेरा नहीं खराब हुआ, मेरा साफ हो गया। नागा मिर्चा इतनी सी, लेकिन बहुत नागा मिर्चा नाम है। नागा मिर्चा तो हम लोग दे देता है, नागा मिर्चा तो नाम नहीं है। नहीं, उसका दूसरा नाम है, पूछना इसको प्राइवेट में। नहीं, वो सब आउटसाइडर लोग का नाम है, वो नाम नहीं है, हम नहीं बताएगा, पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, प्राइवेट में। तो ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को एक साथ देखना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि 6th शेड्यूल में 6th शेड्यूल के बारे तो हम 371 बोल रहे हैं ना, उसमें आंध्र प्रदेश भी घुसा हुआ है। कहाँ आंध्र प्रदेश वाला? ये तो तेलंगाना बन गया। आंध्र प्रदेश 371 में आपका भी नाम है, आपको पता है? बताओ। आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन का बताओ, और आप 241 5th शेड्यूल में घुसा हुआ है। समझ रहे हैं बात? अभी क्या है, आपका बगल में तो ऑटोमेटिक पढ़ने वाला दोस्त बैठा हुआ है, वो बताएगा आपको। वो भी वॉलंटरी, जैसे इसका साथ कैसा किया, सेम वे एंड ही गॉट, उसको दिमाग में कीड़ा घुस गया, तो फिर अपना कीड़ा को साफ करने के लिए वो अपने बारे में बहुत कुछ जाना। 2018 से ना, 2018 से, ठीक है? तो यू हैव टू डू इट फ्रॉम द हार्ट। अब वो देखो, आंध्र प्रदेश वाला बेटा 317 जानता ही नहीं है, इतना पावरफुल आदमी है, लेकिन जानता ही नहीं। अब वो नहीं जानता है तो उसका फैमिली थोड़ी जानेगा, फैमिली नहीं जानेगा तो उसका विलेज थोड़ी जानेगा, और धीरे धीरे सबको लेकर ऐसे ऐसे करके वो वीरप्पन टाइप का बाहर भेज देगा। वो वीरप्पन का बॉर्डर में रहता आप लोग, और देखो हंस रहा है, और लोग का पार्टनरशिप है वहाँ पे। हाँ, हम गया ना साफ्टा जजमेंट में, उधर ही था ना हम, ठीक है? तो वो जब मिला के देखेगा तो खाली ये नहीं सोचना है कि वो 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 371, नो, उसमें देखो और नंबर आ गई है। दैट इज व्हाई, इसीलिए जब पैसा बनाया ना, तो पैसा में बोला वो 4O में कि एज फार एज पॉसिबल 6th शेड्यूल वाला एडमिनिस्ट्रेशन करने का कोशिश करना चाहिए असेंबली को। असेंबली माने आंध्र असेंबली, झारखंड असेंबली, 10 states having 5th शेड्यूल, उन लोग को करने का। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अभी जो हमारा झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश वाला, हाँ, छत्तीसगढ़ में वो लोग अभी बोलने लगा मेरा रूढ़ी प्रथा, मेरा कस्टम, उसको बचाने का है, उसको बचाने के लिए हमारा जो पुराना है उसको फिर से स्थापित करने का है। पुराना कैसे स्थापित होगा बताओ? होगा? नहीं होगा? कि होगा? अभी देखो, इसको हम फंसाने वाले हैं, रेडी रहो। होगा? होगा? पुराना कर लेगा आप? पुराना रीति रिवाज परंपरा आप कर लेगा? तो आप पढ़ाई लिखाई क्यों किया? आपको पुराना रीति रिवाज में रहना चाहिए था, लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए था पढ़ने के लिए, आप क्यों गए? तो पुराना कर लेगा, आप वकालत छोड़ के वापस जाएगा। ये वकील बनने वाला है, आप लोग जानते हैं, जाएगा वापस, हाल चाहेंगे कि जाएगा, तो फिर रीति रिवाज परंपरा को कैसे वापस करेंगे? अब रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से घोटुल में फिर वापस जाएगा?
तो फिर कैसे वापस करेंगे? ओ जो तुम्हारा मन करेगा उसी को वापस करेगा, बाकी को छोड़ देगा। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? तो जो अंतवासी बनाने वाला तुमको है ना, मतलब बोलेगा नहीं मानेगा, तुम होटल में वापस जाओ, तुम खेती करने जाओ, बोल सकता है ना, मेजॉरिटी में कानून बना देगा ना, वोट तो वही देगा ना, कानून बना देगा, तुमको भगा देगा। लेकिन तुम यदि ठीक से बोलेगा तब कानून भी नहीं बनाने सकेगा ना। तो तुमको बोलना होगा कानून जो अभी बताया हम कि रीति रिवाज परंपरा लोकल है, वो बदलते रहना चाहिए, वो लाल सिंदूर पीला सिंदूर बदलते रहेगा, तभी वो रीति रिवाज परंपरा है। तो फिर रूढ़ी बोलने से तो रूढ़ीवादी में आ जाएगा ना। रूढ़ीवादी तो लकीर का फकीर को बोलते हैं ना, रूढ़ीवादी। तो वो तो अच्छा बात नहीं है। तो 21वीं शताब्दी में क्यों रहने जाओ 19th में। या वो जो हमारा कुछ लोग है, वो हमारा हिंदू धर्म के बारे में पीछे लेने में लगा हुआ है। बहुत लोग पीछे जा रहा है, बहुत लोग आगे जा रहा है, वो रास्ता कच्ची हो रहा है। कौन जीतेगा बाद में पता चलेगा। जो आगे जा रहा है वो आगे वाला ही जाएगा, डोंट वरी। थैंक्स टू सैटेलाइट, चंद्रयान, स्मार्टफोन, नो चांस। कंप्यूटर बाबा, रामदेव बाबा नहीं। कहाँ से कहाँ घुसा दे, बहुत ठीक है। और कंप्यूटर बाबा नहीं रहता तो चंद्रयान में भी नहीं जा सकता। और कंप्यूटर बाबा नहीं रहता तो ब्रह्मोस मिसाइल लेके पाकिस्तान को डराते कैसे। तो कंप्यूटर बाबा को कुछ नहीं कर सकता। तो रीति रिवाज परंपरा को हमको ऑलवेज बदलते रहना, एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम विकास बोलने में खराब लगता है। आप लोग के सामने विकास बोलने में विनाश याद आता है। एनीवे, इन्वर्टेड कॉमर्स, विकास कैसे होगा या ग्रोथ कैसे होगा, या ग्रोथ विकास, या आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी बोल सकते हैं ना। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना तो अपना प्राइवेट काम है ना। हमको हम यहीं खड़ा रहने का मेरा मन है, तो तुम कैसे बढ़ाएगा हमको? तो मेरा मर्जी पर जाएगा ना, नहीं तो नहीं जाएगा, हमसे ही जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो ये सारा चीज, ये 371, 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, इसके बारे में हम बोलने वाले हैं। ठीक, 372 भी बोल दीजिए। झारखंड हम लोग चैंपियन हैं। तो हमारा दिल दुखाया मध्य प्रदेश। 371 and फिर भी हम बोलेगा कि हम चैंपियन हैं, हम उसके बारे में 372 भी है मेरा तो एरिया। कैसे मेरा दिल दुखाया, 72 क्योंकि हमारे साथ जो आदिवासी लोग था, भील लोग, उन लोग हिंदू धर्म एडॉप्ट कर लिया, इसीलिए उन लोग हम लोग से अलग। उन लोग के अंदर में राजा महाराजा का काम भी शुरू हो गया। वो भील लोग में राजा हो गया, और उन लोग रामायण में पूरा लड़ने के लिए राम जी के साथ चल गए। तो थोड़ा वजन डिफरेंट हो गया। और हमारा जो झारखंड का आदिवासी लोग था, उन लोग अपना जंगल में मगन था, और जंगल में किसी को घुसने नहीं देता। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट वाला लोग जंगल में घुसने नहीं देता, सेम, एकदम सेम। इसीलिए चाय बागान बनाने के लिए मेरा आदमी उधर गया, हिम्मत था। बाकी लोग डरते था, उधर जाएंगे गर्दन काट देगा। हमारा आदमी बोला कि कैसे, वो भाई हम भाई, वो बहन क्यों काटेगा मेरा गर्दन? नहीं काटेगा, नहीं काटा। उन लोग बोला अच्छा अच्छा, वो आसाम में तो बहुत अच्छा जगह नहीं है, बहुत गर्मी है वहाँ पे, पेड़ सब भी अच्छा, और हम लोग ठीक से ट्रीट नहीं करता है। हम लोग, गुस्सा मत होना, हाँ हम लोग ठीक से ट्रीट नहीं, हम लोग और ऊपर चला जाएगा। लोग नागा लोग और ऊपर चला गया, मिजो लोग और ऊपर चला, ऊपर जाते गया ना। तो हम लोग का भी वैसे ही था, ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहा है, तो नीचे में ठीक नहीं। उराव लोग, उन लोग तो बिहार में था ना, रोहतास में, तो उन लोग को गड़बड़ हो ना, जो अच्छा करेंगे। वो सोन नदी का बगल से घुस के चलो पहाड़ में चले। तो जितना शेड्यूल ट्राइब 1950 के बाद, वो लोग सब
जंगल और पहाड़ में मिलेगा 95% मान के चलो। अभी 5% में गलती से गंगा नहीं गंडक के किनारे बैठ गया है। क्या हो सकता है भाग के आया होगा तो वहीं पे। एक्चुअली जो एरिया में इन लोग है ना, पहले जंगल था, वहां से लेके वाल्मीकि नगर तक, तो जंगल कट गया इसीलिए इन लोग का विदाउट जंगल हो गया है, लेकिन था जंगल। तो बेसिकली कहाँ भागा इन इन्वर्टेड कॉमर्स, डर के लोग भागता है। हम भागने वैसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम प्लेन्स पीपल का लैंग्वेज में बोल रहे हैं आपको कि भाग गया, भागा थोड़े। वो बोला कि यार फालतू आदमी लोग के साथ नहीं रहेंगे। एक्चुअली वो बोला ये समाज बहुत ठीक नहीं है, हम लोग नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, रहो तुम लोग, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर चले गए। ठीक, नीचे वाला सोच रहा है कि तुमको डरा के भगा दिया, लेकिन ऊपर वाला तो बोलता है तुम डरा के हमको भगाएगा, अभी आएगा तुमको पीट के भागेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा किधर से भागा। उसी टाइप का झगड़ा अभी हो रहा है मणिपुर में, ऊपर नीचे एक पुराना झगड़ा है, लेकिन इसको हमको यूनाइट करना है इनटू अ ट्राइबल होल। ये कैसे करेंगे? इसके लिए संविधान में हमको रास्ता दिया है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 371, 241 तो है, तभी तो 5th शेड्यूल बोलेगा, लेकिन चलो 241 भी हम बोल देते हैं। ठीक, अभी देखो ये कैसे आया। सबसे पहले अंग्रेज लोग कलकत्ता से चला, हमारा राजमहल हिल रेंज, उसमें रोक दिया। उस ट्राइब का नाम है पहाड़िया, पहाड़ में रहने वाला। कितना अच्छा नाम दिया नहीं, पहाड़ में रहने वाला। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग तो लड़ाई लगाएगा ना, नहीं उरांव लोग जब आए ना तो एक आदमी उधर तो इससे चल गया, एक आदमी उधर तो इससे चल गया, इसीलिए वही उरांव लोग पहाड़िया है। और उसी में पहाड़िया नहीं, एक तो सौरिया पहाड़िया है, बात चुट गया। उन लोग भी नहीं समझा, उन लोग ऊपर पहाड़िया नीचे पहाड़िया, पहाड़ में रहता है यार, दोनों पहाड़िया क्यों अलग अलग कर दिया? अपने से अलग किया ना, तुम ऊंचा है हम नीचा है, दिमाग में कीड़ा भरा कर दिया। जैसे अभी उरांव को ढंगर बनाने में लगा हुआ। ठीक, तो पहाड़िया तो खैर जो हुआ, लेकिन उन लोग उसमें तिलका माझी एक तो 1765 में अंग्रेज लोग आया, 1785 में तिलका माझी झगड़ा किया, 20 इयर्स। बताओ कोई आदिवासी किया? अरे रास्ता में वही था तो वही किया ना, तो आप लोग सबके तरफ से न किया। तिलका माझी उसका नाम था। अभी देखो अभी क्या कर दिया पोजीशन में, बोलता नहीं वो संथाली था, वो बोलता नहीं पहाड़िया था। अब संथाली था कि पहाड़िया था, आपस में लड़के ना फैसला करेगा, हम कैसे बोल सकते? हमारा संथाली यहाँ पे है कोई? अब आप बोलो हम क्या करें? सर हमारे और भेज दीजिए, हमारे और भेज दीजिए। बिहार वाला संथाली है? नहीं सर, उड़ीसा वाला। तो आपको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा दुमका वाले लोग का लड़ाई होते रहता। दुमका से कौन है? अब तो थोड़ा बहुत तो आपको टेंशन है। अब आप बोलो हम गलत बोला सही बोला, समझाना इसको। सर हमको बहुत टेंशन है, आप भी सपोर्ट हमारे और भेज दीजिए, हमारे और भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, तो आप लोग आपस में डिसाइड, मेरा काम है डालने का। सर जजमेंट आपका जो रहेगा वही। हम सही बोला कि गलत बोला? झगड़ा है ना? कैसा झगड़ा है? नीचे ऊपर का झगड़ा है ना। नीचे ऊपर का झगड़ा क्या मतलब है? पहाड़, राजमहल पहाड़ के नीचे जितना बढ़िया बढ़िया खेत बनाया था ना पहाड़िया लोग, उन लोग को भगा दिया, और बढ़िया बढ़िया खेत पे संथाली लोग घुस गया, उन लोग को पहाड़ में घुसा दिया ना। जी सर ज्यादा बोल मत खोलिए, सेशन के बाद युद्ध छिड़ वकील जाएगा। साहब इतना ही कर सकता है, जब केस का लड़ाई होगा तो देखेगा किसका तरफ भारी है, उसी का तरफ से। No, sir, I want to say few lines. He belongs to Santhal tribe because he just witnessed about the Santhal rebellion. हाँ, So he belongs to Who? Santhal tribe. Tilka. Yeah.
saying that is the dispute on the field. Academically, I am not interested. Maybe Gunjal will be interested. He's an academic. I am not interested. I am lawyer. I am lawyer. So I reflect the values of the academic. Yes, I agree with you. For me, actually, personally, if you ask me, I think the Santhalis are in the wrong. But when I read, जब हम पढ़ते हैं ना, तब याद आता और ये जो अंग्रेज लोग को तिलका मार के हराया ना, उसको डिफीट किया, डिफीट तो नहीं किया, वो तिलका को पकड़ के उन लोग फांसी दे दिया, ऐसे ही करता था अंग्रेज लोग, फांसी दे दिया। लेकिन फांसी देने के पहले ना तिलका माली जो कमिश्नर था भागलपुर का, उसका ऑफिस में जाके बोला कि हजूर हम तो तिलका माझी हैं, गांव का हेडमैन है। I am not in charge of my own village. I cannot collect rent from anybody. और ये बंगाल से कौन एक तो नीलांबर मित्र साहब आया हमसे रेंट मांग रहा है, ये कौन है? I don't own the raindrops falling on the tree. It is written in our book. तिलका said कि इधर पानी जो गिरता है पत्ता पे, उसका जो बूंद गिरता है उसका तो मालिक हम है नहीं, और जो चिड़िया लोग गाना गाता है उसका तो हम मालिक है नहीं। तो ये कहां से आ गया बंगाल से मालिक बन के? तो कमिश्नर को समझाने नहीं सका, कमिश्नर बहुत समझाया, वो उसको तीर लेके वहीं पे मार दिया। वो जान रहा था बाहर जाएंगे और हमारे नाम से तिलका माझी चौक बनेगा भागलपुर में, और आप लोग तिलका माझी यूनिवर्सिटी बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो मार गया। लेकिन क्या हुआ, वो जब मर गया तब अंग्रेज लोग बोला वो तो चक्कर है, डिवाइड एंड रूल, तो क्या करना है, वो पहाड़िया लोग का ना एक रेजिमेंट बनाया, उन लोग को राइफल दे दिया, उन लोग को सिखा दिया गोली चलाने के लिए, जैसे आजकल होता है। वो कोयला कंपनी और बॉक्साइट कंपनी, माइनिंग कंपनी, तो विदाउट यूनिफॉर्म लेकिन बंदूक लेके घूमता है ना, हाँ सिक्योरिटी का नाम से घूमता है, लेकिन एक तरह से तो वैसा ही है ना। तो पहाड़िया लोग का रेजिमेंट बनाया और उन लोग को गन दे दिया और उन लोग को संथाली लोग से लड़ा दिया। वही लड़ाई अभी तक चल रहा है, समझ रहा है? तो ये स्टोरी अब इसलिए बता रहा है कि उसका रिफ्लेक्शन अभी भी आप देख सकते हैं। आपका यूनिटी को तोड़ने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तिलका माझी अपना काम किया, तिलका माझी जब अपना काम किया तब वहां पे अंग्रेज लोग बोले तो लोग तो और टेढ़ा आदमी लोग है, ये लोग खाली नाम से आदिवासी है। अरे आदिवासी लोग तो यूएस में भी रहता है, उन लोग तो भाग जाते हैं, हम लोग घोड़ा से बैठ के दौड़ाता है तो उन लोग तो भाग जाता है। अनफॉर्चुनेटली उन लोग को रेड इंडियन बोल दिया और यहाँ ब्लैक इंडियन लोग था, लेकिन ब्लैक इंडियन लोग डरता नहीं है, रेड इंडियन लोग डर जाते हैं। लेकिन उन लोग भूल गया कि रेड इंडियन लोग डरा नहीं था। अरे उन लोग का जो मेन खाने पीने, उन लोग खेती नहीं करता था, उन लोग का मेन खाने पीने, रहने, तंबू उम्बू बनाने का, कपड़ा उपड़ा बनाने का तो मेन चीज क्या था? बफलो। उन लोग क्या किया यूरोपियन लोग कि बफलो सबको शूट करके खत्म कर दिया, अपने से खत्म हो गया। अब आप ये स्टोरी को अपना माइंड में, अपना विकास का स्टोरी में जोड़ के समझिए। उन लोग को कुछ नहीं किया, उसका जो संसाधन था, रिसोर्सेज था, उसको खत्म कर दिया। कुमार गिरा दिया। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, राजस्थान में जो भील और मीना का लड़ाई चल रहा है। उसका केस है। हाँ, तो राजस्थान में जो भील और मीना का लड़ाई है ना, वो एकदम पॉलिटिकल है। इसीलिए पॉलिटिकल बात करना ये इतना बड़ा ग्रुप में ठीक नहीं होगा। प्राइवेट में आपसे हम बात कर सकते हैं, बिकॉज हमको मीना लोग से भी बात है। और आपका जो क्या नाम है वो किला का, अमर, वो जो किला है वो, हाँ अमर, आमेर बोल दिया, आमेर। हाँ, तो आमेर फोर्ट लेके लड़ाई है ना। और दूसरा, हम खाली थोड़ा पब्लिक के लिए बता दे रहा है, हम पूरा बात नहीं बताने वाला।
आमेर फोर्ट लेके लड़ाई है। इसलिए लड़ाई है क्योंकि मीना ट्राइब जो था ना, वो एक्चुअली उन लोग का सिक्योरिटी बोल सकते हैं। वो जो हमारा चौहान लोग था ना, वो जो वहाँ का राजा महाराजा लोग था, राजपूत लोग बोल सकते हैं। राजपूत नहीं, उन लोग गुस्सा हो जाता है, उसको बोलना होता है ये क्या बोलते हैं उसको, चौहान नहीं नहीं, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय, सॉरी सॉरी, हम तो इस सब में विश्वास नहीं करते इसीलिए भूल जाते हैं बीच बीच में। क्षत्रिय लोग हैं उन लोग, राजपूत नहीं बोलने का, राजपूत नीचे होता है, क्षत्रिय ऊपर होता है, ठीक है। तो क्षत्रिय लोग का वो गार्ड भी बोलने से मीना लोग गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मीना लोग जो है वो एक्चुअली सिक्योरिटी था, उन लोग का जो फोर्स था उसका, उन लोग कमांडर सब था, और उन लोग का जो टेम्पल था वो टेम्पल का रखवाला भी था। और उसी टेम्पल में एक टेम्पल वो आमेर फोर्ट में उन लोग का टेम्पल है, वही टेम्पल को लेके झगड़ा है, बाकी नहीं बताएंगे, आप बताइएगा, ठीक है, झगड़ा है। लेकिन अब आप लोग समझिए झगड़ा क्यों है, टेरिटरी का बात है, आइडेंटिटी का बात है, उसको डाउन करने का बात है। डाउन क्या बात है, ये जितना नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी लोग क्रिश्चियन बन गया ना, उन लोग आदिवासी नहीं है, क्रिश्चियन बन गया ना, उन लोग को हटाओ दो आदिवासी लिस्ट से, हटा के देखो तो वहां तो नहीं बोलेगा, इधर आएगा झारखंड में बोलेगा कि तुम लोग क्रिश्चियन बन गया, तुम लोग को आदिवासी लिस्ट से हटाएगा, डीलिस्टिंग उसका नाम दिया है। अभी डीलिस्टिंग इन लोग डर गया, क्योंकि इन लोग तो बस तो चाइना बॉर्डर नहीं है, बंदूक भी नहीं है ना, क्या करेगा, इन लोग डर गया, इन लोग को डरा के रखा। अरे यदि नेशनल पॉलिसी बना रहा है तो मीना लोग को भी बोलो ना, मीना लोग बोल रहा है कि हम लोग हिंदू नहीं है, वो क्षत्रिय लोग बोल रहा है तुम लोग हिंदू है, वो झगड़ा। अब उधर हिंदू हिंदू, इधर आदिवासी क्रिश्चियन, उधर आदिवासी, ये क्रिश्चियन भी तो एक टाइप नहीं है, झारखंड में तो कम से कम एक दो टाइप है, यहाँ तो सब अलग 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 अलग, किसको पकड़ेगा, नागा क्रिश्चियन है? आप लोग अलग अलग समझ गए, आप लोग तो समझ गया, उन लोग नहीं समझा, समझा दीजिएगा। ऐसे इधर झारखंड में रोमन कैथलिक, जीएल बड़ा बड़ा है ना, इन लोग का प्राइवेट चर्चेज होता है, प्राइवेट चर्च समझा, आप तो समझ जाएगा, उन लोग को समझा देना, हाँ समझा देना, उन लोग को समझा देना। माने वैसे तो हम बोल सकते हैं एक दो का नाम, लेकिन वो नहीं चलता है, वो जेरोवा जीरे बैप्टिस्ट चर्च बोल सकता है, लेकिन उसमें भी प्राइवेट होता है, माने जो प्रीस्ट होता है वो अपना ग्रुप बनाता है, उसका अपना चर्च होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें डिटेल नहीं जाना है। तो इन लोग को नॉर्थ ईस्ट में वो भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो झारखंड में एक साथ में कर सकता है, मीना में एक साथ में कर सकता है, लेकिन मीना में तो डबल प्रॉब्लम है। पूरा इंडिया का शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट निकलता है ना यूपीएससी का, वो मीना 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 भरा रहता है, और आईपीएस का लिस्ट निकलता है ना पुलिस वाला भी, वो मीना 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 भरा रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन लोग को डाउन नहीं कर सकता है, क्या करेगा, हाँ। और उन लोग बहुत तेज भी होता है पढ़ने में, और काला भी नहीं होता है, गोरा गोरा। अरे तो काला गोरा से क्या होता है, हम भी तो काला, नहीं हम अपना ब्लैक होल वाला पे आप सोचो ना। वैसे काला के बारे में एक बात बोलेंगे, एक बार मुंडा लोग के गांव में हम थे, तो पहले आई यूज्ड टू स्पीक मुंडा लैंग्वेज फॉर Holocaust. His father taught me how to do it. So, but and I was very proud of it because I could use it in my work. तो क्या हुआ ना कि हम विलेज में मीटिंग था, तो हमको बुलाया उन लोग मीटिंग में, और लोग को बुलाया, तो वीआईपी लोग बोला, उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट था बोलने का, वीआईपी का लास्ट में था। तो आई वाज वन दिकू, दिकू मीन्स फॉरेनर, आउटसाइडर। वैसे बिहार में, झारखंड में बोलते हैं दिकू मने ट्रबल मेकर, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रबल मेकर, इट इज विदेशी, नॉट फ्रॉम माई कंट्री, फ्रॉम अनदर फॉरेनर। फॉरेनर बोलने से तो पासपोर्ट वाला लगता है ना,
basically not from Munda country, from other country. It can be Urao country or it can be Santhal country. It's not Munda country. तो दिक्कू बोलने का तो हम बोला मेरा चांस है तो हम तो यंग मैन था उसमें यंग लॉयर तो मुंडारी भी बोलेगा तो वो भी रामदयाल मुंडा का चेला तो भाव ज़्यादा था तो हम अपना स्टार्ट किया तो हम स्टार्ट किया बोला कि हम दिक्कू है अभी आप लोग को मुंडारी भाषा में नहीं सुना रहा मत सोचना गुंजल से डर गया बताने वाला है आपको क्यों हम बोला हम दिक्कू है हम बोला फर्स्ट सेंटेंस और सब खड़ा हो गया क्यों बोला दिक्कू बोला दिक्कू है तो क्या बोला नहीं मेरा डॉटर दिक्कू का अर्थ होता है संथाली में हम लोग दिक्कू का अर्थ होता है खून चूसने वाला क्योंकि हाँ वही तो बोला दिक्कत हम बोले तो दिक्कत कर रहे हो हम लोग बोलते हैं दिक्कू का अर्थ होता है खून चूसने वाला हम वही बोल दिया शांति जी आपको बात समझ शांति जी ये दिक्कत करने वाला डिस्कशन लंबा हो जाएगा अरे खून चूस के दिक्कत करे चाहे थप्पड़ मार के करे बात एक ही है ठीक है तो हम उनको आपका काला वाला भगत पार्ट 2 ब्लैक स्टोरी तो हम बोला कि भाई क्या करेगा भगत पार्ट 2 नहीं हमारा डॉटर तुमको वेलकम करके लाया तुम्हारा उन लोग का कस्टम है उन लोग का बेर हाथ होते हैं हाँ तो वो सब तुम्हारा वो सब किया तुमको वेलकम किया और तुम तो कुपुल है कुपुल मीन्स फैमिली मेंबर है तो तुम तो कुपुल मेंबर हो गया तुम ऐसा क्यों बोला एपोलॉजी एपोलॉजी एपोलॉजीज एपोलॉजी हम तो कोई गलती की है ये तो आइडेंटिटी का भाषण दे रहा है ना सुबह से तो आइडेंटिटी में तो मेरा आइडेंटिटी है ना हम दिक्कू है ना हम झारखंड का लड़ाई लड़ रहा है तो आइडेंटिटी का लड़ाई है ना तो हमारा भी आइडेंटिटी है ना हम दिक्कू है ना वो बोल रहा है खून चूसने वाला अरे हम विदाउट खून चूसने वाला भी तो दिक्कू हो सकता है हमको खून अच्छा नहीं लग सकता तो नॉन वेजिटेरियन हो सकता है लेकिन दिक्कू है ठीक है कोई सब दिक्कू है तो तुम हमको ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है वैसे भी तुमको पता रहना चाहिए आइडेंटिफाई करके रखो अपना दुश्मन को तो हम तो दिक्कू है ना हम तुम्हारा दुश्मन है ना दिक्कू हमको आइडेंटिफाई करके रखो कि ये वाला जो दिक्कू है ना उधर जो घूम रहा है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वेजिटेरियन है आइडेंटिफाई करके रखो या वो मेरा दोस्त है दुश्मन नहीं है आइडेंटिफाई करो जैसे पुलिस यूनिफॉर्म में है तब तुम जानेगा ना तो पुलिस मेरा दोस्त है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है वो सीआईडी का है वो सेल्टेक डिपार्टमेंट जानेगा ना आइडेंटिफाई करो तो बोला नहीं नहीं नो अपॉलॉजी ओके आई विल अपोलोजाइज बट कंडीशन नंबर 1 कि आफ्टर आई अपोलोजाइज आई विल नेवर स्पीक इन मुंडारी अगेन इन योर विलेज और एनीवेयर इन झारखंड नो नो यू कांट डू दैट एंड हिज फादर वाज अगेंस्ट व्हाट इज द थिंग बिकॉज़ बहुत सोच समझ के हमको ट्रेनिंग किए थे ना so he looked at me with bad eyes I also looked back at him and said no promise is promise I will not speak so everybody fell silent I said okay I apologize but before I say final apology hear me out क्या बोला आप काला है हम भी काला है ठीक है दोनों काला है लेकिन आप कोयल है और हम कौवा है और कोयल का जो अंडा होता है ना उसका देखभाल करने का काम मेरा है आप लोग को पता है कोयल का अंडा को कौवा देखभाल करता है कोयल अंडा देके भाग करता है कौवा आके उसको गर्म करता है उन लोग का मुंह बांध उस दिन से हमको उस गांव में ना I'm like God over there कोई कुछ नहीं बोलता हम बोले हम तुम्हारा वकील है ना तुम्हारा खेत का पत्थर का देखभाल हम करता है ना इसीलिए हम दिक्कू है 5 उंगली बराबर नहीं होता है कोई सब दिक्कू एक साथ नहीं हो सकता है मुट्ठी बनाएगा ना हमको नहीं रखेगा एक नागा को नहीं रखेगा उधर तमांग को नहीं रखेगा तो तुम्हारा संथाली कुछ नहीं कर सकेगा तुमको अकेले में ऐसे करके पकड़ के संथाल परगना के अंदर में बंद कर देगा सब बात तो समझी
नहीं करते। पहले इसको हर तहसील को इसके बारे में स्थानीय क्षेत्र का डिटेल खोजेंगे, विचारधारा किस तरह का विचारधारा का है। सर की बात नहीं। ये तो हमारे जैसा सोचने वाला बहुत कम आदमी है, हम मानते हैं ये बात, लेकिन इसको धीरे धीरे ही ना आप ज्यादा कर सकते हैं। जानने की इच्छा है यार, जानने को। जैसे हम इतना दिन से अकेले में झंडा उठा के आज हम इतना आदमी के सामने बोल रहे हैं ना, पहले तो नहीं सुनने बैठता था हमारे लिए इतना आदमी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। गांधी बाबा तो अकेले डंडा लेके चला गया, उसके पीछे पीछे तो कितना आदमी आ गया, वो नहीं जाता तो कैसे होता। तिलका मांझी तो अकेले गया था ना, वो थोड़ी गैंग को लेके गया था, नहीं गया था। हाँ? हमारा सिद्धू कानू चांद भैरव और उसका बहन लोग, उतना ही लोग ने दिया था लड़ने के लिए, बाद में ना सब आया। तो इसीलिए सिद्धू कानू चांद भैरव, उसका बहन का क्या नाम, फूलो झानो, वो लोग तो अपना मर्जी से गया। क्यों गया? क्योंकि महाजन लोग उसका खेत में गड़बड़ किया। वो तो पूरा मीटिंग करके नेताजी जैसा तो नहीं गया, लेकिन उन लोग का देखा संथाली लोग कि ये दोनों बहन का इतना हिम्मत, और सब औरत लोग पीछे गया। अब औरत लोग पीछे गया तो मर्द लोग भी पीछे गया। और बहन लोग का देखो, बहन लोग नहीं आएगा तो कैसे होगा। और फूलो झानों के बारे में कभी बात नहीं करता है, कभी कभी मूर्ति उर्ति लगा दिया है, सिद्धू कानू चांद भैरव। अरे फूलो झानों को क्यों भूल जाता है। हम लोग को मीटिंग करना पड़ा, काटीकुंड एक तो जगह है इन लोग का, काटीकुंड, वहाँ पे बहुत बदमाश लोग रहते हैं। हाँ, मैंने सिटीजन लोग हैं, लेकिन उन लोग थोड़ा संथाली बहुत स्ट्रांग अलग है, तो उन लोग बहुत यूनाइटेड भी है, इसीलिए स्ट्रांग है। तो उन लोग फूलो झानो करके बहुत 1985-86 से हम लोग शुरू किए, तब फूलो झानो का मूर्ति लगा, नहीं तो खाली सिद्धू कानू चांद भैरव। क्यों? क्योंकि नेताजी लोग आके वहां पे माला डालने के लिए उसको जगह नहीं था, तो माला डालने के लिए। तो बहन लोग को नहीं भूल सकते, ये चीज आप आदिवासी समाज से ही सीख सकते हैं, याद रखिएगा। अभी आपको बताए ना ये शादी के बारे में, याद रखिएगा कितना बैलेंस्ड है। और संथाल परगना में ना अंग्रेज लोग से और लोग कानून लिखवा लिया, संथाली औरत लोग, कि जो विधवा है उसको उसका बेटा आधा शेयर, आधा हिस्सा देगा जब तक वो जिंदा रहेगी। और यदि संथाली भाई चाहे तो अपना बहन को भी हिस्सा दे सकता है, कानून में लिख दिया। अब उराव लोग के बीच में क्या है, मुंडा लोग के बीच में दूसरा कानून से है ना, वहां पे ये बात नहीं लिखा है, थोड़ा सा डरपोक है। संथाली लोग थोड़ा ताकत वाला है ना, डरपोक है, नहीं लिखवाया इन लोग अंग्रेजों से, तो वहां पे उन लोग बोल देता है कि नहीं, आदिवासी महिला का तो कोई अधिकार ही नहीं है। आपका भाई लोग देगा आपको, जोर से बोलिए ना, नहीं तो बोलेगा कि वकील पैसा खा लिया। पूछ लो, इसको नहीं देगा सर, लेकिन उसको देगा। और वो यदि हल्ला करेगी ना तो डर के देगा, वही नहीं, वो यदि हल्ला करेगी ना, अभी एक तो हाल में हम एक तो केस जीता है, वही कहानी बता रहे हैं आपको। हल्ला करेगी ना तो मान लो उसका घर में कोई भाई नहीं है और खाली बहन लोग है, और वो बहन लोग में उसका बाप जो है ग्राम प्रधान था, माने विलेज हेडमैन था, ठीक, और वो बाप मर गया, तो वो लोग का जो कजन ब्रदर लोग था ना, उन लोग केस कर दिया कि लड़की लोग कैसे बनेगा ग्राम प्रधान। ये पिछला 5-6 साल का बात चल रहा है। वो लड़की जो थी ना, वो हमारा इंडियन, मैंने वन ऑफ द डॉटर्स इंडियन नेवी में पढ़ाई लिखाई कर ली, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सबमरीन का कंट्रोलर है, और संथाली लड़की पढ़ी लिखी है ना। तो हमको कांटेक्ट की, बोली सर ऐसा ऐसा बात है, कानून क्या है? बोले ऐसा ऐसा कानून है। ओ ऐसा ऐसा है, वो केस कर दी, उसको बताया, एसडीओ के यहाँ केस की, जीत गई। भाई लोग उसको फिर चलाया हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में भी हरा दिए। अभी उसका बहन विलेज हेडमैन है, ग्राम प्रधान, आप पता कर लीजिएगा, गांव का नाम नहीं बताएंगे। देखते हैं दोनों का बंटवारा, लड़की चाहेगी तो उसको भी हक मिलता है। अरे देखिए ये भी लड़की है, हम लोग में भी सर वैसे ही है, ग्राम प्रधान में लड़की बनती है, अगर लड़का नहीं होता।
लेकिन नहीं दे रहा था। वही हम बोल रहे हैं ना, मांगेगी तो लिखा हुआ है कानून में ना। अब यदि मांगे भी नहीं करेगी तो कैसे होगा? यदि चुपचाप बैठ जाती तो नहीं होगा ना। वो हम कह रहे हैं कि आपका जो एंटाइटलमेंट है, आपका जो अधिकार है, आपको लेना पड़ता है। खाली बोलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, हमको दो। अरे दो क्यों बोलता है? लो। दो तो भिखमंगा लोग मांगता है ना। तुम्हारा तो दिया हुआ है, तुम ले लो जाके। अरे ज्यादा एंटरटेनमेंट है। हाँ? एंटरटेनमेंट के क्या फायदा सर? सब्जेक्ट से हाँ? ज्यादा एंटरटेनमेंट एंटाइटलमेंट है ना, लॉ का एंटाइटलमेंट। और जो आपका संविधान में 20 प्रोविजंस है प्रोटेक्टिंग योर ब्रॉडली आइडेंटिटी। नहीं, सब्जेक्ट नहीं बात। अरे वो बोल रहे थे क्वेश्चन वाला पूछना होगा ना, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। हाँ, एक जोर से बोलो तो सब सुनेगा। तुमने तुमको अकेले में बोल रहा है। जोर से बोलो, बोलो ना। क्या बोले सर? सब्जेक्ट नहीं बोल। हम सब्जेक्ट में जा रहा है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल ना, हम जा रहा है वहीं। ओके सर, बट वो अलग अलग बिल आर bills वो Because when I conclude, you will find that all are coming together. It's like building a house, putting bricks. When I put roof, then you will understand. ज्यादा बीच से हाँ, अभी टाइम लग रहा है थोड़ा। हम तो गाड़ी भी देख रहा है ना, डोंट वरी, गाड़ी भी देख रहा है। आई एम एट द एंड। तो जब संथाली लोग वैसा किया ना, तिलका मांझी, तो अंग्रेज लोग सोचा कि अरे बाबा ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा तो उन लोग को लड़वा देते हैं, और लड़ाई जब करेगा आपस में उन लोग संथाली और ये, तब तक इन लोग को कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा ना। तो उन लोग बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया, उसका नाम रखा मिलिट्री कलेक्टरशिप ऑफ द रामगढ़ हिल ट्रैक्ट। ओ देखो, मिलिट्री का नाम दिया पहला बार झारखंड में, पहला बार झारखंड का नाम मिलिट्री कलेक्टरशिप नाम दिया। मैंने फौज का अंडर में देके झारखंड में घुसा अंग्रेज लोग, ठीक, और उधर आपस में लड़वा दिया। लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, आगे तो बढ़ने नहीं सक रहा है ना। बिकॉज उसके बाद तो आ गया और संथाली लोग, ये तो उन लोग उधर वाला था ना। उसके बाद हजारीबाग वाला संथाली लोग आ गया, उन लोग का तो उससे कनेक्शन नहीं था ना। इन लोग तो हजारीबाग में, इन लोग संथाली लोग का किंगडम का हेडक्वार्टर था, चाय चंपा बोलते हैं हजारीबाग। तो वहाँ तो राजा महाराजा लोग था ना, वो लोग तो आउटसाइडर लोग था ना, मैंने दूर भाग गया था, इसे दिल्ली में रहने वाला हो गया था ना। यहाँ पे तो एक्चुअल दिल्ली वाला लोग था, उन लोग वाला चलेगा नहीं, लड़ाई हो गया। तब क्या करेगा? तब बोला वो अच्छा तो लड़ाई हुआ तो बहुत जगह लड़ाई हुआ। घुस रहा है ना तमाड़ में, उसका गांव के पास, वहां पे लड़ाई शुरू हो गया कि नहीं, क्या चीज का लड़ाई? हमारा रीति रिवाज परंपरा को तुम नहीं तोड़ सकता। अंग्रेज लोग को बोला, तुम हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पाड़ा पंचायत, उसको नहीं तोड़ सकता है। हमारा अपना ही चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हारा अफसर को हम नहीं मानते, तुम्हारा रेवेन्यू अफसर को हम नहीं मानते। यही सब झगड़ा चल रहा है। वहां चलते चलते तमाड़ से थोड़ा और दूर सिंहभूम का पहाड़ में गया, तो कोल लोग जो था, उन लोग को कोल बोलता है, जो हो लोग है, हो आदमी, उन लोग को उस समय कोल नाम था, उन लोग का कोल बोलता था उन लोग। तो कोल लोग जो था, उन लोग तो कोल लोग था ना, उन लोग पूरा 1833 में, बहुत पहाड़ है वहाँ, 700 हिल्स। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का है ना पहाड़, वैसे ही वहाँ पे 700 ऑफ देम। तो किधर से घुसेगा, क्या करेगा, नहीं जान रहा अंग्रेज लोग। वो तो वहाँ पे क्या करेगा? फिर वो 1 साल वहाँ झगड़ा हुआ, कौन लोग था, चाईबासा, सिंहभूम, उन लोग घुसने नहीं दिया अंग्रेज लोग। फिर बाद में उन लोग का संधि हुआ, और संधि में क्या हुआ कि हम लोग का जो 700 हिल्स है, उसमें कोई जमींदार नहीं आ सकता। देखो पहला एडमिनिस्ट्रेशन अपना, नो आउटसाइडर इंटरेस्ट। चलो तुम अंग्रेज है, तुमको मान लेता है, लेकिन कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता, ठीक, पहला। दूसरा, हम लोग टैक्स नहीं देगा तुमको, मान गया अंग्रेज लोग, बताओ। तीसरा, कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा ना, ऐसा कैसे? आप तो अंग्रेज है, राजा है, तो हमको नहीं देके। अच्छा ठीक है, जिसके पास जितना हल है, हल
के हिसाब से टैक्स। मान लो उसके पास 5 तो हल है तो 5 के हिसाब से टैक्स, इसके पास 2 ही तो हल है तो 2 के हिसाब, पर खेती का टैक्स थोड़ा सा अपना राजा वाला लगाएगा उतना है। थर्ड, मेरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन का यहीं पर रूल्स तुमको बनाना होगा अलग से, कोई कानून नहीं था उस समय, रूल्स बनाया, उसका नाम है विल्किंसन्स रूल्स, क्योंकि जो कैप्टन था उस समय फौज का जिसके साथ हुआ था उसका था कैप्टन थॉमस विल्किंसन, इसीलिए उसी का नाम से रूल्स है जो अभी तक लागू है कोल्हान में। विल्किंसन रूल्स विल्किंसन्स रूल्स। सर कौन सा साल में सर? और विल्किंसन्स रूल्स में क्या 1833 कि 300 रुपीज से 1833 कोल्हान में, कोल्हान में सर? हाँ या विल्किंसन रूल्स। कौन सा साल सर? 1833 चाईबासा वाला से बात करो। 1833 है ना चाईबासा? यस हाँ, वो है वो अलग अभी भी है, कोल्हान सुपरिटेंडेंट ऑफिस है घर से चक्रधरपुर में अभी भी है। 1833 में ले लिया सोचने के बाद, 1833 में। और दूसरा अंतिम चीज क्या किया कि 300 रुपया के नीचे का जितना लैंड डिस्प्यूट का मामला होगा रेवेन्यू का वो लोकली सॉल्व होगा। 300 रुपीज उस समय अंग्रेज लोग का टाइम का 300 याद रखो, और 300 रुपीज के ज्यादा हो जाएगा सिविल कोर्ट, तो 300 रुपीज से ज्यादा तो होने का ही नहीं था ना, सोच लो। हाँ, अब ये सीड हो गया, सीड ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, सीड हुआ ना, छोटा एरिया और जस्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नो जमींदार, तो नो आउटसाइड इंटरफेरेंस, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सब हो गया ना। सर अभी क्या हुआ? हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, जो लोकल से गवर्नमेंट का जो बोले है उस पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। वो अभी नहीं बताना नहीं चाहते नहीं हैं बेटा, सर, वो आप प्राइवेट नहीं 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 उन लोग को कैसे Okay. समझाएंगे? कोलन सुपरिटेंडेंट मान के मुंडा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके आप समझाना ना प्राइवेट, आप लोग तो अभी हफ्ता भर है ना, आपसे यदि इंटरेस्टेड पूछेगा तो उसको बताना। हाँ, थोड़ा सा हमको भी ओके खिड़की दो, नहीं तो हम को डिफरेंट एरियाज का है ना, पूरा एक ही एरिया का बात नहीं बोल सकते, ठीक। तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का सीड हो गया जर्म। अच्छा, अभी क्या हुआ फिर आगे 1833, अभी फिर आगे अंग्रेज लोग ट्राई कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कुछ नहीं हो रहा, जहाँ जा रहा है वहीं पे लड़ाई हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो साल का बहुत बड़ा बड़ा ट्री है जी, ये रेलवे लाइन लाने के लिए तो बहुत अच्छा हो, तो दोस्ती करना बहुत जरूरी है, तो जो बोलेगा वही करने का है ना, तभी तो दोस्ती होगा। तो जो बोलने का में क्या दोस्ती किया, अभी हम मध्य प्रदेश नहीं पहुंचा है, अभी झारखंड में ही है। तो क्या किया दोस्ती इन लोग? 2 चीज का दोस्ती हुआ, इकोनॉमिक्स, साल का पेड़ इतना मोटा इतना लंबा, और अंग्रेज लोग को पता चला कि साल का पेड़ का नाव बनाने से ना समुद्र का पानी में ना वो खराब नहीं होता है। अरे वाह, क्या मजा। और उसका रस्सी बनाने के लिए ना वो जो नाग फेनी जैसा तो गाछ होता है ना, जैसे एलोवेरा होता है वैसे ही एक तो हम लोग का जंगल में होता है उधर, उसका रस से रस्सी बनाने से ना उसमें भी समुद्र का पानी में खराब नहीं होता है। बोला ये तो परफेक्ट है, इन लोग को नहीं बताना है, चुपचाप इन लोग का। हाँ, और हम लोग इधर से कर लेगा, जो बोलेगा मान जाओ। उधर कोल्हान मान गया ना, ठीक है, इधर क्या क्या करना है उरान लोग के बीच में और मुंडा लोग के बीच में क्या करना है, उरा मुंडा के, चलो तुम लोग का अलग से तुम लोग का लैंड का रिकॉर्ड बना देता है, और उन लोग को भूइहरी करके तो लैंड रिकॉर्ड 1869 में लॉ बनाया। बोला कि भूइहरी, इसमें तुम लोग का जैसा कोल्हान में वैसा ही तुम लोग का भी क्या था लोग का नाम? भूइहरी, BHUINHARI, भूइहरी। 2482 villages in Jharkhand are not controlled by the Land Reforms Act of our country. सोचो कितना पावरफुल लॉ बनाया। कब बनाया? 1869 में। 1950 में जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया पूरा इंडिया में, उसको वहां लागू नहीं होने दिया हमारा मुंडा और उरांव लोग। 1952 में उसको वापस ले लिया गवर्नमेंट, यूनिटी। अभी तक उन लोग गवर्नमेंट को रेंट नहीं देता है,
2,482 villages inside Jharkhand, inside fifth schedule, inside India. आप सोचो, इसीलिए स्टोरी बता रहा 1869, लेकिन झगड़ा तो शांत हो ही नहीं रहा, झगड़ा होते ही जा रहा है। क्यों? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को तुम नहीं तोड़ सकते, क्यों हम तुमको टैक्स नहीं देगा, क्यों हम रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं मानेगा, चल रहा है। हर 5, 10, 15 गांव के बाद झगड़ा शुरू, ठीक है। अब झगड़ा होते अभी क्या करेगा इन लोग। तो जब ये जो भुइयारी वाला खत्म हुआ तब बोला कि अच्छा तो हम लोग तो एक तो गलती कर दिया ना, ओ सॉरी हम गलती किया। गलती क्या किया कि जब आपका कोल्हान वाला जो रिवोल्ट हुआ हम लोग का, उसी समय ना न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, वो एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया नॉन रेगुलेशन प्रोविंस। मैंने जो मिलिट्री कलेक्टरशिप था उसको नाम दिया नॉन रेगुलेशन प्रोविंस। मतलब क्या हुआ कि जो कानून कलकत्ता में बनाएगा वो कानून ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा झारखंड में, जब तक कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करेगा। तो इसका जो आवाज है आर्टिकल 370 जैसा सुनाई दिया आप लोग को? सुनाई दिया सर 372 370 अभी जो कश्मीर में वो हटा दिया है। वो देखो हमारा झारखंड के आदिवासी लोग पहले ही 370 का बीज डाल दिया। क्या डाला? जब तक कानून लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लागू नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू नहीं होगा। आर्टिकल 370 क्या था? पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर असेंबली उसको लागू नहीं करेगा। तो हम हीरो है ना, हम नहीं, झारखंडी लोग हीरो है ना। पहले से ही कर रहा है ये बात। क्या कर रहा है? आप लोग के लिए कर रहा है, उसी सीट को आगे ले जा रहा है। और 370 के बाद ही 371 है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए वो जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस था अब उसको भी तो कितना दिन चलाएगा, बिकॉज जमींदार लोग ऑब्जेक्शन कर रहा है, ऐसा कैसे होगा, स्पेशल उन लोग कैसे रहेगा। तो क्या किया? अभी भी चल रहा है। 71 नहीं गया, अभी है 370 खाली गया। हाँ बेबी हम तो बोला तो अंतवासी बनाने के लिए तो कर ही सकता है, पार्लियामेंट में वोट करेगा हटा देंगे, कर तो सकते हैं। वो तो अभी केस चल रहा है। अरे वो तो अरे सब तो मिला हुआ है तुम्हारा कोर्ट में। हाँ कोर्ट में। वकील साहब मेरा भी एक छोटी सी बात सुनिए। भुइयारी जमीन या गैर भुइयारी जमीन जो CNT एक्ट से प्रभावित है वो भी जमीन, और जो कभी नहीं बिकता है भुइयारी जमीन वो भी जमीन को लेने के लिए, कानून को दरकिनार करके लेने के लिए कॉलोनी व्यवस्था बनाया है। आपके सामने आप जहाँ रहते हैं उस जगह की बात मैं कर रहा हूँ। हरमू कॉलोनी है, कम से कम 200 एकड़ जमीन आदिवासी जमीन और मुस्लिम जमीन का, और थोड़ा बहुत साहू लोग का जमीन है, तो पूरा मुस्लिम जमीन और आदिवासी जमीन है। आपके सामने 74 में एक बड़ा उपयोगी जमीन, मैं पटना का सचिवालय से बाबू लोग 1 बजे चाय पीने निकला होटल में, उसी जगह बात किया कि अरे यार दक्षिण बिहार जाते हैं टूर करने, रहने की सुविधा नहीं, सारे लोग जंगली है, कोई चाय पानी का व्यवस्था नहीं, क्यों ना हम लोग एक वहाँ कॉलोनी का व्यवस्था करें। बस होटल में बात किया, अंदर घुसा जब लंच आवर में, उसी जगह फाइनल हो गया और 1974 में अशोक नगर कॉलोनी बन गया। तो इस तरह से कॉलोनी के नाम से भुइयारी और CNT एक्ट की सारा जमीन ले लिया जा रहा है धीरे धीरे। और आप ज्यादा नाचिएगा, ज्यादा खूंखार अपने को साबित बनने की कोशिश कीजिएगा तो आपका रांची में हाईकोर्ट है, वो लुटेरा लोग इमीडिएट एक रीट कर देता है, इसका प्रमाण मेरे पास है। जिस दिन हाईकोर्ट स्टैब्लिश हो रहा था उस दिन वहाँ के चीफ जज को स्वागत करने के लिए हम गया था। तब से आज तक वहाँ पर 50,000 जनहित याचिका
जिसमें मुश्किल से 100 जनहित याचिका मुस्लिम किया है, जिसमें मुश्किल से 100-150 जनहित याचिका आदिवासी किया है, और बाकी दूसरे स्टेट के लोग जनहित याचिका रीड करके ट्राइबल लैंड को खारिज कर दे रहा है। ये भी सर हमको बैकग्राउंड बताने दें, हम आपका जवाब दें, जस्ट खत्म कर लेंगे। हाँ, जस्ट खत्म कर लेते हैं हम। तो ये आपका 1900 हाँ नॉन रेगुलेशन प्रोविंस, ठीक है। तो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस जब बनाया तो उसका जो देखा कि इसमें तो उतना नहीं हो रहा है, झगड़ा तो होते ही जा रहा है ना, तो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस का आइडिया को तो खत्म भी नहीं कर सकते। तो इन लोग फिर क्या किया कि इन लोग नॉन रेगुलेशन प्रोविंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया उसमें बनाया, फिर चेंज किया। क्या किया? बैकवर्ड ट्रैक्ट, पूरा एरिया को 6 शेड्यूल माने आदिवासी एरिया, जंगल पहाड़, उसको नाम दे दिया बैकवर्ड ट्रैक्ट। माने इंडिया का जो ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट TRACT, उसका ये बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड सब है, ठीक। तो बैकवर्ड ट्रैक्ट हो गया। अब वो तो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस खत्म हो गया, और जो एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन था आपका, जैसे आंध्रा में था, वही नॉन रेगुलेशन प्रोविंस एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, सेम चीज एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बॉम्बे में भी है। एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बॉम्बे में थोड़ा सा वो जो कहानी बताई बाघ वाला, वो एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन है। मद्रास में भी एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, और यहाँ भी हमारा था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ में था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा सुने होंगे ना, वो फ्रंटियर एजेंसी। तो अभी जो हम आपको नॉन रेगुलेशन प्रोविंस बनाए उसी को एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, और उसी को नेफा, NWFA बालूचिस्तान कश्मीर साइड में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी झारखंड में, अब मद्रास एजेंसी एंड आंध्रा, सब मद्रास एजेंसी में ही आंध्रा आता था पहले, आंध्रा तेलंगाना मद्रास एजेंसी, तो मद्रास एजेंसी और बॉम्बे एजेंसी, ठीक है। ये एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन अब क्या करेगा, तब उन लोग जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना तो सबको मिला के बोला कि बैकवर्ड ट्रैक्ट, सब बैकवर्ड आदमी लोग हैं, ठीक है। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है कि अभी तो इंडिपेंडेंस होने वाला है ना, अभी तो अंग्रेज लोग जान रहा है कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो धीरे धीरे उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, इंडियन लोग को दे रहा है, काउंसिल बना रहा है, ये सब बना रहा है, असेंबली हाउस तो नहीं, उसको काउंसिल हाउस बोलते। तो उसको लेके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें बोला अच्छा बैकवर्ड बोलने से तो गुस्सा हो जा रहा है सब ना, तो फिर उसको नया नाम दे दिया। नया नाम दे दिया क्या, क्या बोलेगा उसको, एक्सक्लूडेड एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया एंड नॉन एक्सक्लूडेड एरिया। एक्सक्लूडेड एरिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 6 शेड्यूल, और उसी में इनर लाइन परमिट। अभी सब बोलता है दिल्ली में, हम लोग तो, ये लोग चाइनीज लोग कहाँ से आ गए, इन लोग को चाइनीज बोलते हैं, मणिपुरी वाले लोग चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज नहीं बोलते, चिंकी बोलते हैं। ये चिंकी लोग कहाँ से आ गए, हम लोग तो सेम कंट्री में है ना। इन लोग का कंट्री में जाने के लिए हमको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, ये पासपोर्ट थोड़ी लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। इन लोग अपना कानून लगाया ना कि ऐसे तुम आपसे मेरा जमीन नहीं खरीद सकता है, मेरा नहीं ले सकता है। ये कैसे हो सकता है भाई, क्यों हो सकता है? अभी तो हम लोग का संविधान इंडिया में कहीं भी जा सकता है। 1903 में मुंडा लोग, बिरसा मुंडा का नाम इसीलिए इतना पूरा आदिवासी लोग लेता है। 1903 में बिरसा के मरने के बाद वो कानून बनाया अंग्रेज लोग। गुंजल का माँ का घर के पास सर्वे सेटलमेंट हो रहा था, वहां पे ऑब्जेक्शन किया सब मुंडा लोग, बोला बिरसा मुंडा को तो तुम प्रॉमिस किया था कि हम लोग का अलग से तुम कानून बनाएगा, तुम अलग से हम लोग का जमीन दूसरे जमीन का बिक्री नहीं हो सकता है गैर आदिवासी को, क्यों नहीं बनाया? कैंप में आग लगा दिया उसी का घर के पास। फिर अंग्रेज लोग बोला कि कैसे होगा,
तुम अपना पट्टा दिखाओ, तुमको कौन दिया जमीन, कौन जमींदार राजा तुमको जमीन दिया? बोला हम तो यहाँ मुंडा है, तुम हमें से पूछ रहा है, ये तो मुंडा लोग का देश है, तुम हमें से पूछ रहे हो हम कहाँ से है, तुम बताओ ना तुम कहाँ से है। ये हम कहानी बना के नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो तुम कैसे करेगा? तुम कागज दिखाएगा, कागज तुमको कहाँ दिखाएगा? तुम जाओ, तुम छोटा मोटा, हम अंग्रेज को दिखाएगा। तो इन लोग का जो शासनगिरी है, जो पत्थर है, आदिवासी का एक तो निशान ये भी है कि आपका गांव में पत्थर गाड़ा रहेगा, चाहे नागा हो, चाहे मिजो हो, चाहे जो भी हो, पत्थर का पूजा करेगा, रॉक सब लोग करेगा ना। तो ये पत्थर एक तो उखाड़ के ले गया मुंडा लोग कलकत्ता और अंग्रेज को दिया, बोला यही मेरा पट्टा है। ठीक है, अंग्रेज लोग मान गया, बोला ठीक है हम लोग इसी को मानते हैं। तो खूंटी एरिया में नया नाम से जमीन का सेटलमेंट हुआ, उसका नाम रखा गया मुंडारी खुटकट्टी। उधर भुइयारी तो था, अभी नया किया बोला अंग्रेज लोग, अरे भुइयारी बना देते हैं, तुमको हो लोग जैसा खुटकट्टी बना देते हैं। बोला नहीं, नो खुटकट्टी, नो भुइयारी, मुंडारी खुटकट्टी, और कानून बनाओ कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को बिक्री नहीं हो सकता है। वही कानून आपका पूरा इंडिया में भी लागू हो गया 1903 में। हम लोग के पास पहला कानून और 1903 ठीक। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन गया और एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया का जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको 6 शेड्यूल बनाया और इनर लाइन परमिट डाला, और जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था उसको 5th शेड्यूल बनाया। लेकिन दोनों में डिफरेंस कर दिया, वहां पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनेगा, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल 5th शेड्यूल एरिया में बनेगा, और यहाँ 6th शेड्यूल में क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा। दोनों में फर्क है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अपना रीति रिवाज परंपरा को देखने का, कंट्रोल करने का अधिकार है। हाईकोर्ट में वहां से यदि निर्णय होगा तो हाईकोर्ट जाना होता है, और डिप्टी कमिश्नर पास नहीं जाना, सीधे हाईकोर्ट। इन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है, गुवाहाटी जाना पड़ता है, असम वाला लोग साथ देगा तभी तो क्या करेगा, लेकिन जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। लेकिन उन लोग का है, इन लोग अपने लिए टैक्स कलेक्शन भी कर सकता है। आज आपको बता रहा था ना वहां पे ट्राइबल सब प्लान में कहां कहां से रिसोर्सेज, इन लोग अपना टैक्स कलेक्शन कर सकता है। आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हाँ आपको नहीं पता, आपको बाहर रखता है सब नागा लोग। आप पता करना, आज बता दे रहा है, झगड़ा मत करना, पता करना, मैंने प्यार से पता करना, पापा से शुरू करना, बाहर में गुस्सा हो जाएगा सब। क्या कि मेल डोमिनेशन तो क्या करेगा हमारा पूरा देश में, क्या करेगा। भले आप लोग का मैट्रिलिनियल जो मैं बोलने का, केरला में मैट्रिलिनियल तो बोलने का, लेकिन वो तो चक्कर ही है। तो 6th शेड्यूल का समझ गया। तो अब यदि पेशा में बोलते हैं कि 6th शेड्यूल जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करें तो क्या मानेगा? क्या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने देगा? 5th शेड्यूल एरिया में, आंध्रा में तो बनाने नहीं दिया अभी तक, राजस्थान में तो बनाने नहीं दिया। चाहे भले मीना को, इसीलिए मीना लोग को लड़वा रहा है, ताकि उन लोग सबसे पावरफुल है, कहीं बना देगा तब। ऑफिसर भी है ना, IAS IPS, हाँ तो कर सकता है। मीना लोग का कोर्ट वो तो ट्रेडिशनल वाला कोर्ट है, तो पावरफुल भी है। तो यदि उसको लागू कर देगा तो जिस तरह से इनका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पावर है, वो मीना कोर्ट तो पहले से ही चल रहा है, और उसी तरह से आपका कोल्हान में भी कोर्ट चलता है, आपको पता है। और देखिए कोल्हान वाला उन लोग का भी कोर्ट चलता है, और उन लोग का कोर्ट का ऑफिस कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट जज का ऑफिस के पास है जी। तो सारा चीज पैदा है, इसको आप लोग कैसे जोड़िएगा, कैसे एक साथ होइएगा, ये तो आपके हाथ में है। हम तो खाली बता दिए, इसमें बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा मेरा बात सुनने
मेरा अपना समाज में, मेरा परिवार में तो अभी कोई कुछ नहीं बोलता है कि मेरा समाज में बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम क्यों करते हैं ऐसा? आपको लगेगा कुछ का एजेंट है क्या? नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रॉमिस किए थे। जब हमको लाइसेंस मिला लॉयर का, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में हमको प्रॉमिस करना पड़ा कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमको सिपाही लोग पकड़ता था आदिवासी अभी झारखंड आंदोलन टाइम में, तो हम यही बात बोलते थे कि हम क्या करें, आप संविधान बदल दो, हम चुप हो जाएंगे। जब झारखंड में पत्थर गाड़ी मूवमेंट आप लोग पढ़े होंगे, पत्थर गाड़ी, हाँ, वो पत्थर गाड़ी मूवमेंट में ना वो उल्टा सीधा करा दिया था, आदमी लोग उल्टा समझा दिया था, उल्टा हो गया सब चीज। वो नहीं था, ओरिजिनली में क्या था कि पेशा का रूल्स का पत्थर गाड़ता था मुंडा लोग। वो कहां से कौन एंटी सोशल एलिमेंट आया, उन लोग को सिखा दिया कि तुम लोग नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट है। और मध्य प्रदेश वाला लोग नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट, आप लोग, हाँ आप ही लोग शुरू कर दिए। आप लोग अकेले नहीं किए, थोड़ा सा आप लोग का वो गढ़चिरौली को छोड़ने के बाद गुजरात का आदमी लोग मिलकर सब आप ही लोग कर दिए। हम लोग को बाद में पता चला, आपके बारे नहीं बोल रहे आपका, लेकिन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, उसी में रूढ़ी प्रथा का बात कर रहा है, उसी में पत्थर गड़ी हमारे यहाँ कराता है, आपके यहाँ क्यों नहीं कराता? हम लोग क्वेश्चन किया, अरे यदि तुम ऐसा है तो तुम हमारे यहाँ क्यों कर रहा है? तुम गुजरात में करना चाहिए तुमको, वहां से भी आया था आदमी लोग, तुम यहाँ पे क्यों नहीं करता है? उसके बाद इन लोग मीना लोग का एक पार्टी बना दिया, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो लोग का भी दिमाग उल्टा सीधा करने लगा। सॉरी, फैक्ट है ना, भले 4-5 तो एमएलए जीत गया, लेकिन क्या करे, जीतना तो कोई भारी काम तो है नहीं, सब मिलके वोट कर देगा, जीत जाएगा, लेकिन उल्टा सीधा हो गया ना, कोई फायदा तो नहीं हुआ, कोई पावर तो नहीं मिला आपको। लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टी बना ना, इसके बाद में ये लड़ाई टेक्निकली खत्म हो गई, लेकिन ये लोगों ने भी मीना और बिल को ज्यादा आन दी, ऐसा कैसे? आप पॉलिटिशियन हो, हमको बता देना होगा। आपका दिल्ली में जो प्रोफेसर है, स्पोक्स पर्सन, हमारा चेला है, बता देते हैं। वो भी सर बाप पार्टी के, आपका बाप पार्टी के लीडर है। उसको बता देंगे, प्रोफेसर को पहचान गए ना आप? ओके, ये हम लोग का प्राइवेट टॉक हुआ, डोंट वरी। सर वो भी पहचानती है प्रोफेसर को भी पहचानती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, हम नाम नहीं बता रहे, समझ गई ना, बताने का नहीं, मैं भी समझ गया। पुराना चेला है, बताने का नहीं। ओके, हम उसका विरोध में बात कर रहे हैं, ऐसे वैसा बात नहीं, अभी हम खोल के दिखा देंगे। जो बात बोले हैं ना, वहाँ एक छुट्टी में एक कैंडिडेट खड़ा किया था, सब लिख के भेज दिया उसको कि तुम फालतू काम करेगा, तुम्हारा हरा देंगे। तो हुआ, आपको सुबह में ब्रेकफास्ट में बोलेगा, हम दिखा देंगे, ठीक है? ये थोड़ा प्राइवेट बात हुआ, मीना लोग के प्राइवेट तो नहीं हुआ, पब्लिक बात हुआ ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग यदि एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग तीर चलाएंगे, तो कहीं पे बैठने वाला नहीं है। और इसका यूनाइट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग का है 6 शेड्यूल। और इसीलिए पेशा का जब बन रहा था, तो हम ही लोग डलवाए 6 शेड्यूल, उसमें रामजाल जी भी इन्वॉल्व थे, उसके पिताजी हम लोग डलवाए। हम तो वकील साहब लिखते रहते कानून, तो डलवाए, हम अकेले नहीं थे, हमारे गुरुजी लोग थे, उसके अलावा और लोग थे, नाम आप लोग सब जानते हैं, नाम लेके क्या करें, जो लोग यहाँ नहीं है, मर गया, उसका नाम लेके क्या करें, लेकिन हम वहाँ पे क्लर्क थे, बॉस लोग उधर थे, ठीक है? तो 6 शेड्यूल इसीलिए डालेंगे, सोच के कि यदि उधर से आपको सपोर्ट मिलेगा तभी आप जीत सकते हैं। और इसीलिए हम लोग लद्दाख में 6 शेड्यूल का बात कर रहे हैं। उसका 2 कारण है, एक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फर्स्ट कारण है एनवायरनमेंट, क्योंकि यदि वहाँ लैंड का ट्रांसफर इजी हो जाएगा, तब वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल है हमारा 5th शेड्यूल में धनबाद, कोयलरी एरिया, ऐसा एग्जाम्पल है ना, तो उसको बचाना। लेकिन वहाँ पे इतना मिनरल है ना,
और इन लोग का कश्मीर में भी वो लिथियम मिल गया, जिससे स्मार्टफोन में बैटरी बनाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी बनाता है। और लद्दाख में भी लिथियम मिल गया, अब क्या करेगा? अभी लिथियम मिल गया, अब क्या करेगा? और चाइना भी बोल रहा है वहाँ लिथियम है, ज्यादा हल्ला करेगा तो हम घुस जाएगा उसमें। अदम तो घुस गया डोकलाम में। हाँ, तो चक्कर है ना। तो यदि 6 शेड्यूल बना देगा हम लोग तो वो एक प्रोटेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, लैंड ट्रांसफर रुक जाएगा ये। और नंबर 3 फायदा क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, तो हमारा चाइना का बॉर्डर भी सेफ रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है ना, ठीक है। लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। उसका क्या स्टोरी है आप जुल्फिकार से बात करिए, ठीक है। बताना सबको, तभी तो सपोर्ट मिलेगा। हाँ, और ये नॉर्थ ईस्ट रूम में नॉर्थ ईस्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कुछ नहीं होगा। साउथ वेस्ट एजेंसी तो ऐसे ही खत्म हो गया, मद्रास एजेंसी वैसे ही खत्म हो गया, बॉम्बे एजेंसी तो गायब हो गया। कितना एकड़ बचा हुआ है बताया था ना आपको, लड़की आप लोग को, कितना हेक्टेयर से इतना छोटा बच गया ना। बाघ उसको बोल रहा है कि साथ दो। अरे बाघ के क्यों साथ बोल रहा है? बाघ लोग तो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ है, उन लोग को बुलाओ ना, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग चमचागिरी, आई एम वेरी सीरियस, ओके। एनी क्वेश्चंस? यस, फर्स्ट डे चुपचाप बैठा। मतलब ट्राइबल स्टेटस के लिए किसी भी कम्युनिटी के लिए क्या पैरामीटर? जोर से बोलना होगा बिकॉज एवरीबडी शुड। ट्राइबल स्टेटस के लिए किसी भी कम्युनिटी के लिए क्या पैरामीटर्स हैं? ट्राइबल स्टेटस होने के लिए, ट्राइबल स्टेटस होने के लिए आपको बताया पहले तो टेरिटरी होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल दिए थे कि आसाम में हमारा आदमी लोग गया चाय बागान बनाने के लिए, उन लोग का नाम टी ट्राइब कर दिया, चाय वाला आदिवासी। अरे तो आदिवासी नाम क्यों दिया? सिर्फ बोलता ना चाय वाला। टी ट्राइब एक्ट कानून बना दिया। और तो और अंडमान में वो गोल वाला जेल बनाने गया ना हमारे आदमी लोग, वहां पे उसका नाम दे दिया रांची ट्राइब। अरे ये कोई नाम है? तो मुंडा लोग गया था जेल बनाने के लिए, बंगाल में तो नहीं दिया है। वहीं पे वो सावरकर जी को बंद करके रखा था ना, तो उसको रांची ट्राइब नाम दे दिया। तो अभी उन लोग को ट्राइबल स्टेटस ही नहीं है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कैसे दें? एक्चुअली आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे Unless the president notifies after 1974 by the Scheduled Tribes Act, अलग है 74 में, उसमें जब तक प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन नहीं होगा आपको ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलेगा। आपको ठग सकता है, आपको पॉलिटिशियन लोग बोलेगा चलो, जैसे झारखंड ने बोला कुर्मी लोग को आदिवासी बनाएंगे, हो ही नहीं सकता। सर वहाँ पे हमारे वहाँ पे पहाड़ी इतने ग्रुप करके मतलब नए से स्टेटस दिया है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, गदा ब्राह्मण, कुर्मी, पादरी ट्राइब लिस्ट में नाम है। हाँ अभी ये 2014 में तो पास हुए, 14 मार्च को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिस्ट में नाम है। बिल्कुल सर आ गया। कब से? यही अभी जो अपना पिछला ये बजट सेशन हुआ था उसमें पास हो गया था, इसलिए आ गया। हमारे स्टेट में तो चल रहा है उसका। ओ पिछला वाला जो अमेंडमेंट कराया अर्जुन मुंडा, वही तो कर। हाँ अपना छोटी का वो नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ। हो गया। अच्छा, हम लोग को तो नहीं दिया अभी तक। आपके पास है नोटिफिकेशन? निकालना पड़ेगा। आपके फोन में हमको भी दे दीजिए कल सुबह में, तो हम भी आग लगाने में तैयार रहेंगे। नहीं, हमारे पास सारा नोटिफिकेशन है, ये वाला नहीं है, सीधे मामले। वकील लोग को फायदा होता है ना, कागज रहेगा तभी तो बॉस बनेगा ना। सवाल कर सकते हैं। पहले वो बड़ी स्थिति हुई उनका वो देश से डिमांड था कि हमें ट्राइबल स्टेटस। देन क्या हुआ कि उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया, पॉलिटिकल गेम्स जो भी उनको स्टेटस दिया। एक्चुअली सर वहाँ पे जो किसी को सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे पहाड़ी मैं कभी भी लैंग्वेज नहीं सकता, मैं पहाड़ी हूँ। और पहाड़ी जम्मू कश्मीर छोड़ो तो बाहर भी सबको स्टेट होना चाहिए। लैंग्वेज से नहीं होगा, कस्टम, टेरिटरी एंड नोटिफिकेशन। वो तो सर मैं जानता हूँ लोकल कमेटी की जो रिकमेंडेशन है 1965 की, हाँ वो तो फॉलो नहीं ना हुई। वे आल्सो चैलेंज दैट आल्सो। I think I will not discuss it openly because this legal matter. It will confuse what I have discussed over here. But I will talk to you in the morning. हाँ, tribal status. जैसे हम लोग ST का
अभी सुना नहीं शायद भूल गया। फर्स्ट, नॉन रेगुलेशन प्रोविंस में नहीं था। सेकंड, बैकवर्ड ट्रैक में नहीं था, क्योंकि वो नीचे है ना अलीपुरद्वार, पहाड़ में नहीं है ना, तो इसीलिए नीचे था ना। अभी हम क्या बोला कि जितना हमारा बैकवर्ड ट्रैक और नॉन रेगुलेशन प्रोविंस था वो जंगल और पहाड़ में था, तो आप वहाँ नहीं है। थर्ड, आपका कोहेसिवनेस वहाँ पे नहीं है। कोहेसिवनेस का मतलब कि एक्चुअली में मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन ट्राइबल्स का और चाय बगान वाला लोग का है। आपका जो है थोड़ा सा छिटक के है, इसीलिए कैसे मिलेगा? वेस्ट बंगाल में कहीं है ही नहीं। तो फिर जो आपने बोला ऊपर के लिए वो ट्राइबल स्टेट नहीं है, जीके जो दार्जिलिंग है वो तो फिर जनरल नहीं चला जाता। अभी आप परफेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा। परफेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि वही 5th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल में ये मांग रहा है ना कि हम लोग का क्यों नहीं है। 5th शेड्यूल में दिया हुआ है, आर्टिकल 5 ऑफ द 5th शेड्यूल में दिया हुआ है कि जहां पर 5th शेड्यूल एरिया डिक्लेयर्ड है बाय प्रेसिडेंट, वहां पे तो ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल बनेगा अंडर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और जहां पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एनफ है, वहां पे गवर्नर अपना एडवाइजरी काउंसिल बना सकता है, लेकिन बंगाल में नहीं बनाया। इन लोग मांगेगा तभी तो बनाएगा। अब बंगाल में तो वो इन लोग क्या मांग रहा है? गोरखा हिल काउंसिल। नहीं, लेकिन वो तो आपको तो उसी में जोड़ के देखेगा ना बंगाली, सॉरी कोई बंगाली है सब बंगाल में तो टीएससी है सर, लेकिन जोड़ के देखेगा ना। बंगाल में टीएससी कमेटी है तो वहाँ पे पूछ रहा है कि जब मच्छी बेसिकली छोड़ खाते रहते हैं इलेक्शन में, तो वहाँ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल क्यों नहीं है और 5th शेड्यूल क्यों नहीं है? ये सब बोतल लेके आते हैं पकड़ के। तो आपका जलपाईगुड़ी में भी तो नहीं है, तो फिर वही सवाल है ना उसका, क्यों नहीं है? वो नहीं है बोल के वो सवाल है कि क्यों नहीं है। है तो, और आपका क्या नाम है मिनिस्टर का अभी जो एमपी है? हाँ, क्या मनोज जॉन बारला मनोज टिग्गा वहाँ कैसे आए? जब सीट में आए वही सवाल पूछ रहे हैं ना कि जब है तो क्यों नहीं है 5th शेड्यूल? आप जवाब दीजिए। तो हम जवाब दिया उसको कि क्योंकि आप नहीं मांग रहे हैं इसीलिए नहीं। या दूसरा बात हम बोलेंगे, तमाम का आपके साथ मेल नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा। बोल सकते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका उससे मेल नहीं है, दिख रहा है ना, इसीलिए नहीं है। और हम यदि मान लीजिए कलकत्ता में बैठे हुए हैं, हमको तो फायदा है ना, हमको तो चाय बिक्री करेंगे और कमाएंगे, इन लोग लड़ते रहे क्या है? और इसी का आदमी को हम बना दिए मंत्री और अपना काम चल रहा है क्या है? जोर से नहीं बोलिएगा तो हमने नो प्राइवेट। आपने बताया था कि 5 क्षेत्र जहाँ है वहाँ पे एसटी की जमीन एसटी ले सकता है, हाँ, अगर नहीं ले सकता। बट वो कह रहा है कि एसटी की जमीन जनरल परचेज करके कन्वर्ट करवा दे रहे हैं, तो हाउ इट इज? यही सवाल तो हमारे दादा बोल रहे हैं। कौन बेच रहा है? वही तो बोले इसीलिए वो खरीद रहा है। सिंपल सी बात, कौन बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है, वही कैसे खरीदे? दादा वही बोले था कि सारा गलती तो आप लोग कर रहे हैं, एसटी को ही बेच रहा है। और एसटी उसको जो कन्वर्शन सब जगह अलाउड नहीं है, उड़ीसा में अलाउड है, मध्य प्रदेश में अलाउड है, कन्वर्शन करवा ले रहा है तो हम रोकना पड़ेगा। ये रश्मि जी आकर यहाँ पर नहीं, तुमको बचाना पड़ेगा, वही बात बार बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं लैंड कंट्रोल, जो लैंड हाथ में आएगा तभी दूसरा वो तो वही चीज दादा कहना में भी आपको बताया, ठीक है?
question? Hey Vicky, you have any question? Please hand up your. धनबाद में खाली गड्ढा है वहाँ पे। नहीं, हम क्वेश्चन पूछते हैं आर्टिकल 372। लो इसको लो। आदमी तो दिखता नहीं इसको लो है। नीचे में आग लगा हुआ है। ये लोग धनबाद वाला ना कैसे चलता सवाल है? हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे चलता है। वो अंदर से गर्मी होते रहता है पैर। बाकी सवाल सर, और इन लोग का घर पे ना, घर के अंदर में चूल्हा से धुआं नहीं निकलता है। सर लास्ट घर के जमीन से धुआं निकलेगा। सर ये 370 लास्ट क्वेश्चन 372। अब 2 क्वेश्चन एक साथ कैसे करेंगे? और सब जाने के लिए लास्ट क्वेश्चन बोलो। लो नहीं होगा। ठीक शेड्यूल में ऑर्डर